हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट स्कोर। आप भी ये सोच रहे होंगे क्रेडिट स्कोर कैसे निकाला जाता है, किस चीज के लिए ये जरूरी होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट वी हैव टू कीप इन माइंड, व्हाट आर द मिथ्स अबाउट क्रेडिट स्कोर। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट मिस दिस वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट इज द यूज ऑफ क्रेडिट स्कोर। जितने भी बैंक और लैंडिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं वो क्रेडिट स्कोर असेस करते हैं सो दैट टू नो वेदर यू आर वर्दी ऑफ गिविंग सम लोन। जितना बेटर आपका क्रेडिट स्कोर होता है उतने हायर चांसेस होते हैं लोन अप्रूव होने के। सो एंड आपको एडिशनल बेनिफिट भी मिल सकता है जैसे लो इंटरेस्ट रेट, रिपेमेंट टर्म्स एंड सम क्विक अप्रूवल प्रोसेस। सो क्रेडिट ब्यूरो क्या करता है, दे हैव देयर ओन एल्गोरिथम टू कंप्यूट द क्रेडिट स्कोर। Generally, it is calculated basis your payment history, your credit utilization, your credit age, and credit type. So let's take a look at all the factors which is very important in calculating the credit history and score. What are the advantages of high credit score? आपको सबसे important benefit जो मिलता है, cheaper interest rate on loan, card with better benefit and rewards, avail pre-approved loans, loans with longer tenure, quicker approval on credit application, negotiation power. In case अगर आपको लगता है आपको negotiation करना है for the interest rate, तो आप अच्छे से negotiate कर सकते हो basis your credit score. Discount on loan processing fees and other charges and higher credit card limit. So these are some advantages of having high credit score. सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोगों के मन में आता है, डज क्रेडिट स्कोर मैटर इन इंडिया? यस, एब्सोल्युटली। इन ऑर्डर टू ग्रांट अ लोन इन इंडिया, जितने भी पोटेंशियल लेंडर्स होते हैं, दे यूज द क्रेडिट स्कोर कैलकुलेटेड बाय सिबिल, ट्रांसयूनियन, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स और क्रिफ हाइमा। Although बैंक के अपने individual limits होते हैं to grant loans, but chances of getting a loan approved is higher if your credit score is very good in terms of 800 to 900 range. The next thing is how do I calculate my credit score? 5 pieces होते हैं credit score को calculate करने के लिए. Your payment history account for 35% of your score. How much you owe on loans and credit card makes up to 30% of your score. The length of your credit card history account for 50% of your score, and the type of account you have make up is 10% of your score. So it is important कि आप अगर जितने भी transaction करते हैं, आपके बाउंस तो नहीं हो रहे चेक, आपने अगर टाइमली लोन नहीं पे किया, these are important things which you have to keep in mind while thinking or applying for a loan. So you have to improve your credit score by all these factors. अब हम बात करने वाले हैं कुछ मिथ्स अराउंड क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर आपके एनुअल इनकम पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। अगर एग्जांपल लेते हैं कि किसी का क्रेडिट स्कोर अगर 816 है, हाउएवर उसकी एनुअल इनकम 5 लाख है। So similarly, it is possible अगर किसी की annual income 10 लाख है and he doesn't have a credit score. Credit score depend on how many credit lines you have and how well you are managing it. So it nowhere correlate with your annual income. अगर आपकी करोड़ों में भी इनकम है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर 0 है या इससे बहुत कम है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपका ये मानना कि क्रेडिट स्कोर आपके एनुअल इनकम पे डिपेंड करेगा, ये बिल्कुल गलत है। Second myth, getting married will merge your score. There is nothing like merging of credit score. Credit score merge नहीं हो सकता. No matter what your marital status, अगर आप married हो, unmarried हो, आपका जो credit score है, they are determined based on the individual financial behavior. कैसे आप transactions करते हो, कैसे आप account maintain करते हो. Having a joint bank account will not change anything with respect to your credit history and score. That's most important thing. और सबसे जो मैंने हालांकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने सुनी है, डेबिट कार्ड बिल्ड्स अ क्रेडिट स्कोर। नो वेयर, डेबिट कार्ड डू नॉट कंट्रीब्यूट टू बिल्ड योर क्रेडिट हिस्ट्री और गेटिंग अ क्रेडिट स्कोर, क्योंकि डेबिट कार्ड इज अ डिफरेंट टूल टू एक्सेस योर सेविंग अकाउंट बैलेंस एंड डज नॉट कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट। सो जो भी ट्रांजेक्शन होती है आपके डेबिट कार्ड से विल नॉट बिल्ड और कंसिडर फॉर योर क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर। देखिए, आप यू मस्ट अवेल अ क्रेडिट card or a loan to open your quota of credit history. Once your credit history is built, your credit score will be generated. लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि डेबिट कार्ड में जितनी आप ट्रांजैक्शन करते रहेंगे उससे आपको हेल्प मिलेगा टू बिल्ड अ क्रेडिट स्कोर, नो, इट्स अ कंप्लीट मिथ। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्लोजिंग अ क्रेडिट कार्ड विल बिल्ड योर स्कोर। जितने भी आप क्लोजिंग अ लोन में हेल्प बिल्ड योर स्कोर, द सेम डज नॉट एप्लीकेबल टू अ क्रेडिट कार्ड। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड बंद करवाना चाहते हैं जो आप कभी यूज नहीं करते, तो it give a negative move in terms of calculating your credit score. According to the agency, you must be capable
of handling multiple credit line well to a good score. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स हैं और आप उसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शंस करते हैं तो इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बढ़ेगी. अगर आप क्लोज कराते हो इट डज नॉट गिव अ गुड इम्पैक्ट, नेगेटिव आपको इसका पॉइंट दिया जाएगा. अगर आपको लगता है कि आपके ओल्ड कार्ड को आप यूज नहीं कर रहे हैं बट थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए उसमें मिनिमल और नॉमिनल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. Closing the old card account will not give any positive impact on your score. So please keep this in mind. और एक important myth है कि अगर आप जितने भी आपके डेप्थ है will erase your transaction from the credit report. So ये सब illusion है. अगर आपको लगता है कि जितने भी आप डेप्ट पे करोगे तो आपके प्रीवियस जितने भी ट्रांजेक्शन क्रेडिट हिस्ट्री है उसको मिटा दिया जाएगा या इरेज कर दिया जाएगा. It's not applicable. It will remain in your credit history for years and impact your credit score and credit availability. So this thing you have to keep in mind. एक important aspect है credit report agency can fix your score. This is not at all possible overnight. अगर आप अपना फिक्स भी करना चाहते हैं तो you have to focus on your credit transaction जो आप spend कर रहे हैं. एंड अगर आपको लगता है ओवरनाइट ये सब चीजें बिल्ड हो जाती है पैसा देके, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. इट्स कंप्लीट अ मिथ. अब मैं कुछ स्टेप्स के बारे में बताना चाहूंगी अगर आप अपने क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं. सबसे पहला है बिल्ड योर क्रेडिट फाइल. आप अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाइए बेसिस योर ट्रांजैक्शन. सेकंड, डोंट मिस एनी पेमेंट. थर्ड वन इज कैच अप ऑन द पास्ट ड्यू अकाउंट. अगर आपको लगता है कि आपके कुछ ड्यूज हैं उन्हें आप क्लियर करने की कोशिश कीजिए. आप नए अकाउंट ओपन करने की जद्दोजहद में क्या करते हैं, आप अपने ओवरड्यू करने लग जाते हैं पुराने अकाउंट्स. पे डाउन द रिवॉल्विंग अकाउंट बैलेंसेस and limit how often you apply for new accounts. That's more important. अब हम बात करते हैं what are the 5 level of credit score. सबसे पहला है exceptional, then second is very good and third is good and fourth is fair and fifth one is poor. So अगर 800 to 850 है, it fall under exceptional range. Then very good is 750 to 799, good is 670 to 739 and fair is 580 to 6689 and poor is 300 to 579. So depending on your exceptional credit score, bank will allow and lend more loans to you. So these are important factors to keep in mind. But देखिए सबके नॉर्म्स, सबके रेंजेस हल्का फुल्का वेरी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल क्रिफ का अलग होगा, ट्रांस यूनियन का अलग होगा एंड क्रेडिट ब्यूरो जो सिबिल का अलग होगा. सो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए. बट to fall under these category, you have to maintain your very good balance, and I have already shared the myths around it. Thank you so much for watching the entire video. I hope आपको ये information जो क्रेडिट ब्यूरो के बारे में मैंने दिया है, how to calculate credit score and what are the myths about credit score will be helpful for you. बिकॉज क्या होता है कि आप जब इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन में काम करते हो तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है. व्हेन यू एंटर इन ऑर्गेनाइजेशन और इंश्योरेंस इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सर्विसेज, आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए कि हाउ ऑल दीज आर कैलकुलेटेड. सो प्लीज लर्न ऑल दीज फैक्ट्स बिफोर एंटरिंग इनटू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. So stay tuned and please do watch the entire series and thank you so much.